In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, very good morning today. And again, another session of vocabulary development. We have been ignoring this session, but now after a long, long time, we have started again. This is going to be a crucial part of your language development. We have allocated 30 words to the students, and they will give us the words about the pronunciation you will know about. And if there is any problem, students are speaking, mispronouncing the words, that will let you know what is the correct pronunciation. And apart from pronunciation, we'll just give concentration to its, spellings. Students will also let us know about the spellings, pronunciation, spelling, Urdu meaning, English meaning, and their usage in sentences. This is the most important feature of our vocabulary development class. If you know about words and you don't know how to use those words in sentences, it means your learning is faulty, erroneous, incomplete. So you will have to learn words along with their translation and their sentence structures. Sentence structures will actually modify your language or elevate your language skills. Communication is the most important segment of your personality development and of your career development as well. If you can't make a wonderful career without knowing about the communication. We have had a session about communication skill. Previously, it was really a wonderful session in which we gave you what is communication all about, how communication influences your personality, and how it is going to be important in your career development. But today, vocabulary is going to be a part of your language class, and I will give you the words, and you will have to perform accordingly. So here you go. Go. My first word is eager. 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 Okay. The first word is eager. Eager. It means she strongly wanting to do or have something. Urdu meaning of eager is betab, mushtaq. मुश्ताक और बेताब. गालिब says हम हैं मुश्ताक और वो बेजार. या इलाही, ये माजरा क्या है? हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है. Fantastic. Eager, mushtaq. Okay. Now use eager in a sentence. She was eager to start her new job. She were eager to start a new job. Fantastic वो sentence. अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए बेताब थी. जाने किसकी याद में बेताब सा रहता है दिल. आजकल कुछ माहिए बेआब सा रहता है दिल. माहिए बेआब means fish out of water. Fish out. Very good. Eager. My second word is earnest. EAR. Earnest. There is a drama or a play in English. The name is Importance of Being Earnest. It's a very, very good play. You must go through it. Okay. Earnest. It means serious and sincere. Senior, Serious, serious and sincere. Sincere. Okay. which means mukhlis, sanjeeda. Mukhlis or Sanjida. Now use earnest in a sentence. He made an earnest effort to solve the problem. He made an earnest effort to solve the problem. उसने मसला हल करने के लिए एक संजीदा कोशिश की. That's fabulous. A very earnest effort from your part. Okay, number 3. Ease. 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 Okay. It means the absence of difficulty or effect. The absence of difficulty or effort. Sahulat. Asani. Okay. He completed the task with ease. He completed the task with ease. और ease noun है और easy इसी से बना है. वो adjective है. सहूलत वाला, आसानी वाला. Easy. Okay, great. My second word He is completed the task with ease. उसने काम आसानी से मुकम्मल किया. शाबाश. Very good word. my second word is elaborate. 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 It means to explain. It is a verb. in Elaborate difficult. is a verb. Grammatically speaking. Okay.
So क्या करना? To explain in To detail. explain in detail. Okay. तफसील से तफसील से बयान बयान करना. Elaborate. शाबाश. Can you elaborate on your point? Can you elaborate on your point? क्या आप अपने नुक्ते को तफसील से बयान कर सकते हैं? Fantastic words. क्या शानदार वर्ड्स दिए हैं. Ease and elaborate. पहले थे eager and earnest. Third and fourth are ease and elaborate. जी आपके फिफ्थ एंड सिक्स वर्ड्स क्या हैं जी? My fifth word is eliminate. Eliminate. Okay. Eliminate. ELIMINATE. Eliminate is also a verb. It's noun is elimination. Okay. Eliminate. Eliminate. It means to get rid or remove. To remove or get rid of. Get rid Get of. rid of होता है किसी से जान छुड़ाना. Get rid of. Get rid of. Okay. खत्म कर देना We have to या निकाल देना. Eliminate. we have to eliminate waste in our company. We need to eliminate waste in our country. हमें हमें अपनी कंपनी में फुसला खत्म करने की जरूरत है. और we need to eliminate waste from our country. हमें वैसे भी गंद साफ करने की जरूरत है. और the recent government is making extensive efforts to eliminate the waste. आप देख रहे हैं सफाई के हवाले से काफी शानदार एफर्ट्स की जा रही हैं. कोई भी करे, अच्छा काम करे, हम उसकी तारीफ करेंगे. ग्रेट. शाबाश. And the second word is eloquent. Okay. Eloquent. ELOQUENT. Right. It means to Fluent. fluence or persuasive in speaking and writing. Oh my God. Persuasive. Fluent. जो है वो आप you know about this word. Fluent and persuasive. Persuasive होता है attractive. Persuasiveness शानदार वर्ड है. Attractive ये उससे भी ज्यादा. Eloquent जैसा important word है. Persuasive in speaking and writing. Okay. लिखने या बोलने में बहुत ही फसीह बलीग होना, बामाना बात करने वाला eloquent होता है. Eloquent. Eloquent speakers होते हैं जो बहुत ही फसाहत के साथ बड़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं. थोड़े से वर्ड्स में पूरा जहान आबाद कर देते हैं. आप जानते ही हैं जैसे अब एक लफ्ज है मोहब्बत. अब इस पे किताबें करोड़ों लिखी गई हैं शायद, लेकिन किसी एक शायर ने एक शेर लिखा है, उसमें पूरी उसने बात बयान कर. उसने एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है. एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है. सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है. All right, शाबाश जी. Eloquent. Eloquent. Now use it in our sentence. She gave a eloquent speech. She gave an eloquent speech. And- उसने एक बामाना तकरीर की. शाबाश. Very good words. आपके वर्ड्स जो थे वो थे eliminate and eloquent. My first word is impressed. EMBR. जी क्या है? Impressed. No, embrace. Embrace होता है Embrace. EMBRACE. गले लगाना. गले लगाना, अपनाना. अपनाना. embrace करना, गले लगाना. He embraced a new change in company. इसने To accept or support willingly. ख्वाहिश के साथ किसी चीज को सपोर्ट करना और कबूल कर लेना. मुझे कबूल है. ओहो. सो क्या हुआ जी? इसने कंपनी में नई तब्दीलियों को अपनाया. He embraced the new changes in the company. उसने कंपनी में नई तब्दीलियों को अपनाया. शाबाश. Embraced. My Second second form past indefinite tense. शाबाश. word is emerging. Hello guys. E जी, next.
emerging. No, emerging. शाबाश. Emerging. Emerging may become visible or important Becoming visible or important. or important. उभरता हुआ तरक्की पजीर. उभरता हुआ तरक्की पजीर. Emerging. जैसे होता है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर. कौन है? साइम अयूब. इमर्जिंग बैट्समैन ऑफ द ईयर. ऑलराइट. तो इमर्जिंग उभरता हुआ, जो पहली 4 इनिंग्स खेली है 3 सेंचुरीज बना दी है उसने. जस्ट लाइक दैट फॉर एग्जांपल. ओके. He is an emerging leader in political. ही इज एन इमर्जिंग लीडर इन पॉलिटिक्स. वो Politics. सियासत में एक उभरता हुआ रहनुमा रहनुमा है. शाबाश. इमर्जिंग और एम्ब्रेस, फैंटास्टिक वर्ड्स. शाबाश जी. मैंने ये कहा था कि अपने वर्ड्स तो आप बता रहे हैं, लेकिन असल हदफ क्या है? वो 28 वर्ड जो दूसरे बोल रहे हैं और जो मैं बता रहा हूं आपको, उनको अपने अंदर उतारना है. राइट. My first word is emphasize. 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 शाबाश. बहुत अच्छा बताया. Emphasize. और स्पेलिंग बताया आपने. शाबाश. जोर देना, अहमियत देना. To give special importance to something, किसी चीज को बड़ी खास अहमियत देना, जोर देना, अहमियत देना. जी. The teacher emphasized the importance of hard work. The teacher emphasized, stressed. टीचर ने जोर डाला किस पे? emphasize. Emphasize. अच्छा, इसलिए emphasize verb है, इसका नाउन है emphasis. emphasis नाउन है. और एक होता है emphatic, ये इसका एजेक्टिव है. emphatic, ये एजेक्टिव है इसका, ये इसमें सिफ्त है इसका. राइट. ओके. सो emphasize, जोर देना. The teacher emphasized the importance of hard work. उस्ताद ने मेहनत की अहमियत पर जोर दिया. शाबाश. Empower. My second word is empower. कितना अच्छा बोला है. Empower. Empower. Right. EMPOWER. पावर से पहले M लगा दिया आपने. Empower. Education empower people to better decisions. Education empowers. तालीम बाइख्तियार बनाती है, To make- फौकियत देती है, कुव्वत देती है people, लोगों को, to make better decisions, कि अच्छे फैसले कर सकें. कितना अच्छा सेंटेंस, बहुत अच्छा आपने बनाया है. शाबाश. कंप्लीट. Yes. Empower और emphasize. शाबाश जी. My first word is enable. To make something possible. काबिल बनाना. Enable. Enable. To Enable. make- ENABLE. Enable. Able से Enable. पहले EN लगाया तो enable बना. Enable. To make something possible. To make something possible. To make something काबिल बनाना. possible. काबिल बनाना. मुमकिन बनाना. शाबाश. The edited video. जी. The video editor usually to make सेंटेंस क्या है? सॉरी. the user video. The software. The software user. So the software enables. The सॉफ्टवेयर software काबिल enables बनाता है users users to इस्तेमाल make करने वालों को to edit videos easily. easily. Software enables the users, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं उनको काबिल बनाता है to edit the videos easily. आसानी के साथ. शाबाश. The next. So my first word is endanger. आपका एक ही वर्ड था. दूसरा वर्ड कौन सा आपका है? तो बोला नहीं आपने. चलो बोले. Encounter. To meet or experience something To unexpectedly. meet or experience Something unexpectedly. Unexpectedly. किसी चीज से, किसी फर्ज सामना से करना. नहीं बेटा, जब मैं बोल रहा हूं तब आप सुनो उस बात Okay. को. अब उसके बाद आपने बोलना है. To meet or experience something, किसी चीज से मिलना या किसी चीज का तजुर्बा हासिल करना. Unexpectedly, गैर मुतवक्को तौर पर.
Sentence. I encounter. एनकाउंटर का मतलब होगा सामना करना या अचानक मिलना। जी। I encountered an old friend at the market. मैं मार्केट में अपने एक पुराने दोस्त से सामना हुआ। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सेंटेंस बताया। आई एनकाउंटर्ड एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट। मैंने मार्केट में अपने एक पुराने दोस्त से सामना किया। ओहो, सामने आमने सामने आ ही जाता है बंदा कभी न कभी पुराने दोस्तों से। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि किसी दोस्त से मिले और आप मुंह छुपाएं, या उससे कतरा के कन्नी कतरा के निकल जाएं आप? यह भी होता है अगर आप उसके साथ फेयर डील नहीं किया आपने, यह तब होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप तमाम लोगों के साथ फेयर डील करें, और आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने जो भी किया है अच्छा किया है। गलत एक होता है गलत कॉन्फिडेंस कि किया भी गलत है और कॉन्फिडेंट भी आप डिजर्व ही यही करता था, इसको ऐसा ही होना चाहिए था। नहीं, वो आपने उसके साथ बहुत ही पोलाइट बिहेव करना, और अगर आपको गलती उसके साथ हो गई है, आप उससे माजरत कर सकते हैं, आप उससे माफी मांग सकते हैं। तो ये माफी मांगना, माजरत करना, ये बेहतरीन अमल होता है। जो माफी मांगता है वो इनफैक्ट बड़े दिल वाला इंसान होता है, वो ज्यादा अजीम इंसान होता है। जो क्योंकि हम समझते लो ये तो ऐसे माफी मांगी थी, छोटा हो गया। नहीं, छोटा नहीं, बड़े हो गए आप, यही समझने वाली बात है। शाबाश जी, शाबाश, अच्छे वर्ड्स थे आपके, एनकाउंटर और एनेबल। शाबाश। द नेक्स्ट वर्ड्स। Sir, my first word is endanger. एंडेंजर। राबा, शाबाश। ENDANGR. GER। GER. डेंजर्स जो खतरा होता है, वो उससे पहले एन लगा दिया। डेंजर तो नाउन हो गया, तो एंडेंजर से ये वर्ब बन जाएगा, खतरे में डालना। राइट। Yes. और एक वर्ड उसका इजेक्टिव है डेंजरस। ये इजेक्टिव है, खतरनाक। और डेंजरसली एडवर्ब है, खतरनाक अंदाज के साथ। राइट। ओके। It's mean to put something at risk, and it's mean in Urdu khatre mein dalna. And there is a sentence: pollution endanger marine life. शाबाश, आपका सेंटेंस है एंडेंजर का खतरे में डालना। तो सेंटेंस आपका है पोल्यूशन एंडेंजर्स Marine life. Marine life. ये लफ्ज क्या है? एंडेंजर्स Marine life. मेरीन लाइफ। हाँ, समंदरी जिंदगी। समुद्री जिंदगी। जो पोल्यूशन है मेरीन लाइफ को खतरे में डालता है। राइट। शाबाश। And my second word is endorse. It's mean to spot and to prove. इट मीन्स It means spot and approve. टू सपोर्ट और अप्रूव। हिमायत करना या तस्दीक तस्दीक करना, करना। एंडोर्स। शाबाश। And there is a sentence: the company endorse the new project. द न्यू प्रोडक्ट। The new product. Sorry, ये sir. फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जी। द कंपनी एंडोर्स्ड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। कंपनी ने हिमायत कर दी या तस्दीक कर दी या अप्रूव कर दिया, सपोर्ट कर दिया द न्यू प्रोडक्ट को। कंपनी ने नई प्रोडक्ट की हिमायत की। शाबाश। ओवर हो गए जी वर्ड्स आपके वर्ड्स थे एंडोर्स और एंडेंजर। शाबाश, वेरी वेल डन जी। My keyword is enforce. It means to make people obey a rule or laws. शाबाश। एनफोर्स, फोर्स होती है ताकत, फोर्स, और इससे पहले एन लगाया तो एनफोर्स का मतलब क्या बना? नाफिज करना, लागू करना। राइट। टू मेक पीपल ओबे, लोगों से ओबे करवाना, किसी लॉ को, किसी रूल को या लॉ को ओबे करवाना। यस। सेंटेंस क्या है जी? Sentence is the police enforce traffic laws. द पुलिस एनफोर्स करवाती है, नाफिज करवाती है। पुलिस एक पूरे, चूंकि एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन है,
तो पुलिस ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट, इसलिए उसने एनफोर्स लगाया है। तो राइट, द पुलिस मैन होता तो फिर इन्फोर्सेस होता, राइट। द पुलिस एनफोर्स ट्रैफिक लॉज, पुलिस ट्रैफिक लॉज कवानीन को नाफिज करती है। शाबाश। And the keyword is enhance. अगला कीवर्ड है एनहेंस। एनहेंस होता है बेहतर बनाना, बढ़ाना, एनहेंस। It meaning it to improve or increase. शाबाश शाबाश। टू इंप्रूव और इंक्रीज। शाबाश। सेंटेंस क्या बनेगा इसका? The new design enhance the beauty of cars. द न्यू डिजाइन enhances। न्यू डिजाइन है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा होगा। न्यू डिजाइन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो द न्यू डिजाइन या द न्यू डिजाइनर भी हो सकता था। enhances द ब्यूटी ऑफ द कार। नया डिजाइन गाड़ी की खूबसूरती को बढ़ाता है। शाबाश। तो आपके कीवर्ड्स थे एनफोर्स और enhance। ब्रिलियंट। My first word is enrich. जी, आपका फर्स्ट वर्ड क्या है जी? Enrich. एनरिच। रिच होता है अमीर, ये होता है एडजेक्टिव, और एनरिच अमीर बनाना, बेहतर बनाना। ओके। It's mean to make something better and rich. रिचर, टू मेक समथिंग बेटर और रिचर, किसी चीज को बेहतर बना देना। शाबाश। सेंटेंस क्या है जी? A sentence is reading book enrich your knowledge. रीडिंग बुक्स enriches योर नॉलेज। किताबें पढ़ने से आपका इल्म बढ़ता है। अच्छा, enriches, नॉट रीडिंग बुक्स। ये भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये टेंसेस भी देखिए साथ साथ किस टेंस को इस्तेमाल किया गया है, ये आप गौर करेंगे तो आपको आइडिया होगा। फिर आपकी और बेहतर वर्ड्स के साथ साथ आप ग्रामर को भी देखिए, स्ट्रक्चर्स को, कि सेंटेंस में कौन सी ग्रामर स्ट्रक्चर, कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया गया है। शाबाश। एनरिचेस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, चूंकि सब्जेक्ट सिंगल है, रीडिंग बुक्स है, तो एनरिचेस या enhances your knowledge या enriches your knowledge होगा। शाबाश। My second word is enroll. Right, enroll। Enroll. It's mean to register or for a course or activity. दाखला लेना. To register for a course or activity, Activity. दाखला लेना, enroll करवाना। शाबाश। Let's translate in English. I enrolled in language course. मैंने एक language course में दाखला लिया. Right, and I enrolled in a language course at Genius Institute Law. And today we are having a vocabulary session in which we are improving vocabulary, C1 level vocabulary. We are also not only learning words, we are learning the meanings and their translation in Urdu and English and their sentence structures, how they are used in sentences along with their translation as well. Shabash. Enroll. My first word is ensure, meaning to make certain that something happens. शाबाश। ये श्योर एक वर्ड होता है, यकीनी, श्योर, और उससे पहले एन लगाया, एनश्योर, यकीनी बनाना, टू मेक सर्टेन दैट समथिंग हैपेंस, किसी चीज का कोई यकीनी बनाना। शाबाश। Please ensure that all lights are turned off. प्लीज एंश्योर, यकीनी बना दीजिए, दैट ऑल लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ, कि तमाम लाइट्स बंद हैं, टर्न्ड ऑफ। व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, you make sure or you ensure that lights are turned off, sorry. My second word is enthusiastic. बहुत ही शानदार वर्ड है जी, enthusiastic. Enthusiasm is a noun, enthusiastic is an adjective, और enthusiastically ये एक adverb हो जाएगा। enthusiastic, showing great excitement or interest, क्या बहुत पुरजोश होना, शौकीन होना, दिलचस्पी दिखाना। सेंटेंस क्या होगा जी इसका? The students were enthusiastic about the trip. The students were enthusiastic about the trip.
तलबा ट्रिप या सफर के बारे में बहुत पुरजोश थे. We are also going to have a very short trip to a restaurant for high tea, inshallah. Will you go for high tea? Inshallah, we'll all go for high tea. Very good. Okay, great. The next word, please. What शानदार वर्ड है जी आपके? Ensure or enthusiastic. जी. My first word is entrepreneur. Entrepreneur. इसको गलती से लोग entrepreneur पढ़ते हैं, वो गलत है. वो entrepreneur इसका pronunciation है a person who starts a business. कारोबारी शख्स या सनतकार, कारोबार का आगाज करने वाला बंदा जो होता है. जी. Now this word used in sentence. He is a successful entrepreneur. वो एक कामयाब कारोबारी शख्स है. वेरी गुड. सही है, सही है. He is a successful entrepreneur. वो शानदार जो है वो कारोबारी शख्स है. जी. My second word is environmentally. Environment होता है माहौल या मौसम के मुताबिक से, और environmental adjective हो जाएगा और environmentally adverb होगा. जी. माहौलियाती तौर पर. It's mean are related to environment. जी, ये वो वाला माहौल नहीं है मुझे मस्त माहौल में जीने दो, मुझे मस्त माहौल. So environmentally माहौलियाती तौर पर. It's Urdu mean माहौलियाती तौर पर. Now this word used in sentence. We should live more environmentally friendly lives. We should live. Not live. We should live more environmentally friendly lives. हमें ज़्यादा. We should live more and for environmentally friendly lives. हमें ज़्यादा माहौलियाती तौर पर दोस्ताना जिंदगी गुजारनी चाहिए. शाबाश. थैंक यू. हमें माहौलियाती तौर पर दोस्ताना माहौल में जिंदगी गुजारनी चाहिए. शाबाश. Wonderful words. Right. So my first word is episode. जी जी. EPISODE. जी जी. It means a part of series or an event. A part of series or an event. Event होता word. वाकया या किस्त. जी. Yes. Let's use it in sentence. The last episode of the show was exciting. शो की आखिरी किस्त बहुत दिलचस्प है और पता ही है आपको, और अक्सर तो ये अब ऐसा होता है जो ड्रामा हिट होता है उसकी आखिरी एपिसोड को, लास्ट एपिसोड को सिनेमाज में जो है वो लगा देते हैं. So the last episode of the drama was a hit. Yes. Was really enthralling. Shabash. My second word is essential. ESSENTIAL. It means absolutely necessary. Shabash. In Urdu, it's zaruri ya lazmi. Great. Let's use it in sentence. Water is essential for life. पानी जिंदगी के लिए जरूरी है. Or you are essential for our class. आप हमारी क्लास के लिए लाजमी हो, जरूरी हो. Sir, my first word is establish. Establish. Right. Meaning कायम करना, बनाना. To set up or create. किसी चीज को कायम बनाना या कायम करना. शाबाश. The company was established in 2005. This company was established, कायम की गई in 2005. Okay, great. कंपनी 2005 में कायम की गई थी. शाबाश. My second word is evaluate. Evaluate. जांचना, परखना. To assess or judge. जांचकारी करना या परखना. शाबाश. वर्ब है evaluate, इसका नाम evaluation है. जैसे establish एक वर्ब है, establishment, और इसका नाउन होगा, और established ये एडजेक्टिव हो सकता है. इसी तरह से evaluation is a noun of evaluate, or evaluate as a verb accordingly. The sentence is the teacher will evaluate our assignment. The teacher will evaluate our assignments. उस्ताद हमारी assignments को का जायजा लेगा. Very good. Doing a great job. जी. My first vocabulary word is evident. शाबाश. Its meaning clearly seen or understood. Urdu meaning वाज़ेह ज़ाहिर. Use in sentence. Evident बहुत ही शानदार word है. Clearly seen or understood.
बहुत ही साफ अंदाज से देखा गया या समझा गया वर्ड वाज़े या जाहिर। जी, use in sentence, his happiness was evident from his smile. His happiness was evident from his smile. उसकी मुस्कुराहट से उसकी दिल की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था, बहुत ही वाज़े थी। Second vocabulary क्या word, जरूरी है कि आपकी मुस्कुराहट आपकी खुशी का ही जायजा लेती हो, का मुशाहिदा हो? बाजुका तो ऐसा होता है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बाजुका तो अपने गम छुपाने के लिए आप चेहरे पे मुस्कुराहट सजा लेते हैं, ऐसा होता है? ओ माय गॉड, कैसे कैसे लोग हमारे जी को सताने आ जाते हैं। ओके, ग्रेट, नेक्स्ट। second vocabulary word is evaluation. नहीं, ये लफ्ज है एवोल्यूशन। Evolution. एक होता है इवैल्यूएशन, वो तो होता है तज्जिया या जायजा। एक होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन Change. होता है इर्तका, तरक्की, एवोल्यूशन। इसका ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव है एवोल्यूशनरी, इर्तकाई। ठीक है, जैसे इसके ऑपोजिट है रेवोल्यूशन, Yes, sir. और इसका नाउन क्या होगा? ये रेवोल्यूशन नाउन है और इसका एडजेक्टिव है रेवोल्यूशनरी। जैसे एवोल्यूशन, उसका ऑपोजिट हो जाएगा इर्तकाई, और इर्तका वाला एवोल्यूशन इर्तका, और एवोल्यूशनरी इर्तकाई हो जाएगा। जी, ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज, किसी चीज में आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीली आती है उसको एवोल्यूशन कहते हैं, और सडन चेंज को रेवोल्यूशन कहते हैं। आप किस चीज पे यकीन रखते हैं, एवोल्यूशन पे कि रेवोल्यूशन पे? एवोल्यूशन पे। ये कहते हैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें इंसान जो था पहले बंदर था और फिर वो इंसान बना, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करता। दिस इज ऑल रबिश। कुरान मजीद कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें अल्लाह ने बताया है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। तो जब ये अल्लाह ने कह दिया है तो कुछ साइंटिस्ट की बात हम क्यों माने? अल्लाह ने कहा, वो उसकी जो पहले दुम थी जी, पहले वो बंदर के जैसा था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुम घिस गई और आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान की शक्ल में जो है वो, ऐसे थोड़ी है। या तो फिर इंसान से फिर आगे बदलते तो कुछ और बन जाता ना, फिर अगर एवोल्यूशन होता रहता तो। लेकिन कायनात के अंदर एवोल्यूशन का मोमेंटम बरकरार है। इसको इकबाल ने कहा था कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। जब अल्लाह ताला किसी चीज को इरादा करते हैं करने का, तो वो क्या कहते हैं? कुन फयकून, हो जा, और बस वो हो जाती है। अक्सर मैं बाजुकात, बल्कि बाजुकात ही हो सकता, अक्सर नहीं होगा, लड़कियों के ना डीपी पे लगा होता है मैं तो कुन के इंतजार में हूं। पता नहीं की करना चाहदियां ने, जरा कुन केड़े कुन दे इंतजार च ने। अल्लाह अकबर जी, हम सारे वैसे कुन के इंतजार में हैं। हर इंसान अपने अपने हर इंसान अपने अपने कुन के इंतजार में है। मतलब जो ख्वाहिशात है ना, उनकी तकमील चाहते हैं हम, और क्या हमारे पास? इंसान ख्वाहिशात की तकमील चाहता है। मेरी ख्वाहिश है मैं ये कर लूं, मैं ये अचीव कर लूं, मेरे पास ये आ जाए। और ज्यादा ख्वाहिशात आपकी देखेंगे आपकी मादी ख्वाहिशात हैं। आप इवैल्यूएट करके देख लें, तज्जिया करें जरा उसका। आपकी मादी ख्वाहिशात घर, गाड़ी और बेहतरीन बिजनेस, बहुत बड़ा बैंक अकाउंट, ये बुनियादी ख्वाहिशों में से आप देखेंगे चीजें होंगी आपकी। अगर आपकी ख्वाहिश रूहानी हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि आप कहें कि मैंने अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा जो है वो रूहानी तौर पर मजबूत होना है, सबसे ज्यादा अल्लाह के साथ लौ लगानी है, सबसे ज्यादा जो है वो आलिम बनना है, कुरान मजीद पढ़ के उसके तर्जुमे और तफसीर के साथ, और हदीस मुबारका जो उनकी किताबें हैं, साहिह सित्ता हैं, तो उनको पढ़ने के बाद मैंने अपने इल्म और फजल को बहुत बेहतरीन और अगले लेवल पर लेके जाना है।
मैंने अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर अपनी जिंदगी बसर करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर हसना पर अमल करना है। मैंने ये मैंने अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैं हर फर्द के लिए दुनिया में आसानी और कामयाबी का बाइस बन जाऊं। ये होनी चाहिए हमारी ख्वाहिशात। राइट? अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को भूल जाओ, नहीं, अपने आप को याद रखो, अच्छा लिबास पहनो, अच्छी खुराक खाओ, अच्छी अल्लाह पाक वसाइल भी दे, गाड़ी भी हो, घर भी हो, सब कुछ होना चाहिए। आप बाहर के मुल्कों में भी जाएं आए, लेकिन मुद्दा जो आपका होना चाहिए वो अपनी रूहानी तामीर, तरक्की और तस्खीर कायनात और दूसरों के साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार करते हुए उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करना। ये होना चाहिए आपकी जिंदगी का मकसदो महवर। अगर आप ये रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको दुनिया में जो आप चीजें चाहते हैं वो भी मिलेंगी और आखिरत में भी कामयाब होंगे। क्या आप चाहते हैं कि जिंदगी सिर्फ थोड़े वक्त के लिए है, यही है जिंदगी जो नजर आती है? नो। जब आप नहीं थे, दुनिया तो उस वक्त भी थी, तब कहां थे आप? आपको यह परेशानी नहीं होती कि जब मैं पैदा नहीं हुआ तो उस वक्त पहले ये कुछ हो चुका था उससे पहले। तो आपको ये परेशानी क्यों होती है कि मैं जब नहीं होगा तो मेरे बाद क्या होगा? दुनिया चलती रहेगी, आप देखिएगा, ज्यादा अच्छी चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कायदे आज़म पाकिस्तान बनाया, आज वो कहाँ है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा। ये सब छोड़ दीजिए, जिस नबी की उम्मत में से हम हैं वो भी इस दुनिया में तो मौजूद नहीं है, वो आलम बरज़ख में है, वो हयात हैं, वहाँ वो अल्लाह रिस्क भी देता है उनको, वो खाना भी खाते हैं, वो नमाज और सजदे ये भी अदा करते हैं और वो अपनी इबादत में भी मशगूल हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने एक खास वक्त के लिए उनको उस दुनिया में रखना है। हम भी बरज़ख में चले जाएंगे। जब हम आलम बरज़ख में जाएंगे तो हमारी कब्र जो है उसके जरिए जाएंगे ना हम। इंशाल्लाह हम फौत होंगे, इंशाल्लाह हम कब्र में जाएंगे, इंशाल्लाह हमारी कब्र अल्लाह ताला उसको जन्नत के एक बागों में से बाग भी बनाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हमारे वालिदैन, हमारे जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं वो भी इंशाल्लाह जन्नत के लिबासों में मलबूस होंगे इंशाल्लाह। और यकीन रखें आप इस चीज पर। देखिए, आप जो यकीन रखते जाते हैं अल्लाह ताला वैसा करता चला जाता है। तो इसलिए आप यकीन रखें और इंशाल्लाह इस दुनिया और इसके बाद आने वाली जो असल दुनिया है, बहुत कुछ समझे हैं गाफिल। इख्तिताम जिंदगी है ये, शाम जिंदगी, सुबह दबा में जिंदगी। दायमी जिंदगी तो वो, सुबह वाली जिंदगी तो वो है जिसके पास जाना। ये तो शाम का थोड़ा सा एक पहर है जिसको गुजारने के लिए हम आए हैं, इकबाल ने कहा है। ऑलराइट, सो अभी अब लर्न जो कर रहे हैं ना, ये भी इबादत कर रहे हैं हम, कि लर्निंग के बारे में हदीस मुबारका में भी आया है। और अनपढ़ जो है वो जो नहीं हो सकता, अच्छा मुसलमान भी नहीं हो सकता, राइट? तो वो हमें अपने आप को, अपने इल्म को भी बढ़ाना है और अपनी ज़ात के अंदर जो सिफात हैं उनको भी ग्रूम करना है इंशाल्लाह। कह दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब आप कहेंगे तो अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालेगा इंशाल्लाह। जी बेटा, आपके एक वर्ड बाकी रह गए हैं जी। माई वर्ड इज एग्जैजरेट। एग्जैजरेट बहुत ही शानदार वर्ड है। एग्जैजरेट वर्ब होता है बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, और इसका नाउन है एग्जैजरेशन होता है। एग्जैजरेशन इसका नाउन है। शाबाश। इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू मेक समथिंग लार्जर देन इट इज। हाँ, किसी चीज को उससे बड़ा दिखाना, एग्जैजरेट, ओवरस्टेट करना, किसी चीज को बढ़ाकर पेश करना, एग्जैजरेट। जी। एंड वी विल यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक दिस, he tends to exaggerate his achievements. हाँ, अपनी कामयाबियों को बहुत बढ़ाकर पेश करता है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास अल्लाह ने अगर कामयाबियां दी हैं दूसरों को बताने में कोई हर्ज नहीं है। उससे क्या होगा? इंस्पिरेशन पैदा होती है। वैसे कुछ लोगों में जेलसी भी पैदा होती है कि आप बढ़ा के जब पेश अपनी, वैसे जो अचीवमेंट्स हैं उनको सोशल लाइफ पे या सोशल मीडिया पे नहीं फेंकना चाहिए आपको। ये दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू गाइस, क्योंकि कोई लोग, आप कम लोग होते हैं, कोई लोग नहीं, कम लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं और अंदर से ही जो है वो दिल में जेलसी का इजहार भी वो कर रहे होते हैं जब भी आप कोई अचीवमेंट्स करते हैं। लिहाजा अपनी अचीवमेंट्स को पर्सनल बनाएं। आप जहां जरूरत पेश आए बहुत दबाना अंदाज से, हम्बल अंदाज से पेश कर दीजिए दूसरों के सामने, लेकिन लेट योर your achievements
be clouded, उनको cloud में रखें आप. Right, next. My sentence is exemplary. Yeah, his word is exemplary. Example होता है मिसाल और exemplary मिसाली. Right. EXMPLARY. EXMPLARY, exemplary. The English meaning is serving as a good example. Serving as a good example. Shabash. The Urdu meaning is misali, qabil, and taqleed. काबिल तकलीद, जिसको तकलीद की जा सके उसकी. शाबाश. Now let's convert into the sentence. She is an exemplar student. She is an exemplary student. वो एक काबिल तकलीद तालिब इल्म है कि उसको देखकर लोग उस जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं. शाबाश. Thank you very much indeed, everybody, guys and girls, for your presentation on these vocabulary items, vocab items. These will play an important role in your academic life and in your language development, position. May Allah bless you all. आप इन वर्ड्स को घर में जाकर जो है वो पूरी वीडियो को देखिएगा. जो वीडियोस में आप लोगों ने अपने वर्ड्स लिखे हैं, हेलो, आपके वर्ड्स हैं, वो सारे कमेंट में आप अपने वर्ड्स मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग के साथ और उसके सेंटेंसेस के साथ लिखने हैं कमेंट्स में. आपने कहना माय टुडेज वर्ड्स वर, ताकि जो देखने वाले दूसरे लोग भी हैं वो भी आपके इस वर्ड्स, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस के साथ आगाह हो सकें, उनको भी मिले इसमें से बहुत से गौहरे नायाब मिले. जो वर्ड समझने में रह गया, लिखा हुआ होगा, तो वो यकीन उनके लिए फायदेमंद होगा. ऑलराइट, यू विल डू इट इंशाअल्लाह ताला. I'll see you all the comments. ये पूरे 30 words होने चाहिए, सारे लोग लिखेंगे. Wish you all the very best of luck. God bless you all. Thank you very much and best of luck.